So up till we have completed one of the popular precise measuring instrument, that is your vernier caliper, which is used in industry for the precision measurement. The another basic measuring instrument was the linear measurement, which is used popularly in industry towards the precise measuring instrument, that is a micrometer. तो आज के सेशन में हम माइक्रोमीटर देखने वाले हैं. So this is your micrometer, and the working principle of this micrometer is such a way that the rotary motion of this thimble is converted into the linear movement or linear progression of the anvil. आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दो anvils है, one is fixed and another is movable, another is moving. So this rotary motion of the circular scale which is present on this thimble is converted into the linear progression of this spindle. So this is a basic working principle of this micrometer. Now we will going to discuss which are the different parts on this micrometer. So as you can see here, this is a fixed anvil and this is a moving anvil. And this moving anvil, it further is connected to this barrel where the main scale is present. The main scale is present on the barrel, and it is again mounted thimble over there where the circular scale is present on this thimble. There is a provided the knurling for the proper gripping and towards avoiding the stylus pressure error. हमने देखा है कि stylus pressure error कि जहाँ पे ऑब्जर्वर एक्सेस प्रेशर अप्लाई करता है तो उस प्रेशर को अवॉइड करने के लिए एक मैकेनिज्म यहाँ पे दिया है, दैट इज अ रैचेट मैकेनिज्म. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स and one of the important part again, that is a lock nut, and lock nut is provided for the locking the position of this moving anvil. अगर moving anvil की particular position को आप lock करना चाहते हैं, so you have to lock this, use this lock nut for the provision of the locking. Okay, now towards the least count, जैसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट देखा था, वैसे हम माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट के बारे में सोचेंगे. सो व्हाट इज लीस्ट काउंट अगेन? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में, तो माइक्रोमीटर में क्या है? द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑन द मेन स्केल टू द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. वर्नियर स्केल इसमें नहीं है, इसमें क्या है? सर्कुलर स्केल है विच इज प्रेजेंट ओवर दिस थिम्बल. तो मेन स्केल यहाँ पे अगर आप देखोगे, यू विल बी विजिबल कि यहाँ पे दो जो एडजेसेंट डिवीजन है उनमें डिस्टेंस कितना है? 1 mm. बट यू ऑब्जर्व करेक्टली, अगर आप सही तरीके से ऑब्जर्व करते हो, सो बिलो दिस स्केल द अनदर डिविजन्स आर अगेन मार्क्ड व्हिच इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द अबव टू डिविजन्स. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट division will be 0.5 mm. तो दो एडजेसेंट डिवीजन में डिस्टेंस कितना हो जाता है? 0.5 mm, not 1 mm, and hence 0.5 mm divided by the number of divisions on the circular scale, that is 50 numbers, similar to the vernier scale, 50 divisions. Hence our least count is 0.01 mm. Now how to take the reading with the help of micrometer? So सबसे पहले you must be understand how to hold it. So you have to rest this portion into your palm. You can see like this. You have to hold these fingers over here, and the another fingers you have to provide to rotate the thimble. तो यहाँ पे मैंने जॉब को another hand में hold किया है, and now using this thimble for the rotation. और अभी जैसे ही ये एनविल, मूविंग एनविल टच हो रहा है वर्कपीस को, तो मैं थिम्बल रोटेट नहीं करूंगा. आई विल गोइंग टू यूज दिस रैचेट, एंड इफ 3 साउंड्स इज सफिशिएंट, साउंड आएगा रैचेट का, स्लिपेज का और
3 बार अगर वो साउंड आ जाता है, यू कैन स्टॉप देयर, यू मे यूज द लॉक नट फॉर लॉकिंग द पोजीशन एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, और उस वक्त आपने ऑब्जर्व करना है बाय लुकिंग इनटू द परपेंडिकुलर टू द स्केल, और वो रीडिंग आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। जैसे कि आप यहां पे भी सामने देख सकते हैं, इफ यू सी केयरफुली, ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो थिम्बल का फ्रंट फेस है, इसने कौन सी डिवीजन कवर की है, अनकवर किया है, दैट विल बी आवर मेन स्केल रीडिंग। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 mm, दिस इज 5.5 mm एंड दिस इज आवर नेक्स्ट 6 mm। तो 6 mm इज माय total reading is equal to main scale reading plus circular scale division into least count। तो main scale reading क्या है, it is 6 mm। what is a circular scale division? तो यहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है, उस रेफरेंस लाइन को जिस भी डिवीजन ने क्रॉस किया है या फिर कोइंसाइड हुआ है, वो हमारी होगी सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि 25th जो डिवीजन है ऑन अ सर्कुलर स्केल वो मैच हुआ है। सो 25 into least count 0.01 mm and that's why total reading will be 6.25 mm in this way. Students, now we will going to see some examples of measurement by using a micrometer। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थिम्बल जो है, थिम्बल ने मेन स्केल पे 41.5 की डिवीजन को क्रॉस किया है, अनकवर हमें दिख रहा है। 41.5 is visible on main scale, so our main scale reading is 41.5 mm। और सर्कुलर स्केल डिवीजन अगर हम देखते हैं तो 8th डिवीजन ने रेफरेंस लाइन को मैच किया है, so total reading will be 41.58 mm। now in second example, अगर हम देखते हैं कि 41 की जो डिवीजन है वो हमें विजिबल नजर आ रही है, but 41.5 is not visible, so our main scale reading will be 41 mm and circular scale की 41st division is going to match, so 41.41 mm is our total reading। now in this example 41.5 हमें लग रहा है कि अनकवर हुआ है, but if you rotate a thimble it is not exactly 41.5। 41.5 कब मैच होगा, जब ये जीरो की जो डिवीजन है जो थिम्बल पे हमें नजर आ रही है वो जब मैच होगा तब वो 41.5 हमें क्लियरली ऑब्जर्व होगा, बट राइट नाउ आवर मेन स्केल रीडिंग इज ओनली 41 mm और 47th डिवीजन सर्कुलर स्केल की मैच हुई है, सो दैट्स व्हाई टोटल रीडिंग विल बी 41.47 mm। तो यहाँ पे आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। समटाइम्स यू आर ऑब्जर्विंग दैट कि 0.5 mm की डिवीजन नजर आ रही है, बट इट इज नॉट केस, क्योंकि अगर वो मेन स्केल अगर हम 41.5 लेते हैं तो यहाँ पे रीडिंग 41.97 होगा, जो कि गलत है, क्योंकि जो गैप नजर आना चाहिए हमें 0.5 mm के डिवीजन के बाद वो यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज 41.47 mm ओनली। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जो कि डिफरेंस मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 41.47 एंड 41.97। तो आपको यहाँ पे क्लियरली गैप नजर आ रहा है 0.5 की जो डिवीजन है उसके बाद, तो ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे ऑब्वियसली रीडिंग विल बी 41.97 mm बिकॉज मेन स्केल रीडिंग 41.5 mm है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 42 mm की डिवीजन हमें नजर आ रही है, 41.5 के बाद गैप नजर आ रहा है क्लियरली, सो अवर मेन स्केल रीडिंग इज 42 और 0 डिवीजन के साथ मैच है, तो टोटल रीडिंग ऑल्सो इज 42 mm। नाउ 41.5 exactly going to match, 0 division is going to matching, so 41.5 mm। now in this case again look at carefully, 40 ही मेन स्केल रीडिंग है एंड टोटल रीडिंग विल बी 41.40 mm because circular scale division 40th
डिवीजन मैच हो रहा है रेफरेंस लाइन के साथ। नाउ 41.5 की डिवीजन क्लियरली ऑब्जर्व है, so main scale reading will be 41.5 mm, and 35th division on circular scale is going to match with the reference line, so 41.85 mm is the total reading. Now again 41 mm की ही डिवीजन नजर आ रही है, 0.5 की नहीं, the reading is 41.35 because on thimble 35th division is going to match with the reference line. Thank you.